स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9th लेसन नंबर 2 पॉलिनोमियल एंड हियर वी आर डिस्कसिंग एक्सरसाइज 2.4 and now the turn of question number 4. In question number 4 we have to factorize. Here only one word is written, factorize. It means you are free. You can factorize it by the factor theorem or by the splitting middle term. Okay, because related to the factor theorem we done questions earlier in the first two videos. Question number 1 related to the factor theorem as well as second and third is also related to the factor theorem. That's why in this question I am going to tell you splitting the middle term method, means how we factorize a quadratic polynomial. Look here, all these polynomials are quadratic, so we are going to learn here how to factorize the quadratic polynomial by splitting the middle term. I think in class 8th you done it also. In class 8th if you study by the NCERT, then very easy questions you faced, but if you solve the RD Sharma and other textbooks, then some good problems you also faced. Okay, here first of all I want to read each part for you. Factorize 12x square minus 7x plus 1, this is the first part. 2x square plus 7x plus 3, second part. 6x square plus 5x minus 6, third part. And 3x square minus x minus 4, this is your fourth part. Okay, so let's come to the solution. First part is P of x is equals to 12x square minus 7x plus 1. We know the general form of the quadratic polynomial is what? ax square plus bx plus c. हम इन्हें कंपेयर करेंगे बट हम साइन पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे, मीन्स साइन को हम कंपेरिजन में नहीं लेंगे. ओके, हियर 12x square means coefficient of x square is 12 and here coefficient of x square is a, so the value of a is 12 as well as value of b is 7 and value of c is 1. Okay, first of all the procedure is what? We have to take product of a and c. हम क्या करते हैं? a और c को मल्टीप्लाई करते हैं. 12 into 1 is equals to 12. क्लियर. अब जब आपको a और c का प्रोडक्ट मिल गया 12, तो हमारा वर्क क्या होता है कि हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो कांस्टेंट है c, उसके सामने साइन कौन सा है. हियर साइन इज व्हाट? प्लस. इट मीन्स कि a और c को अब हम ऐसा फैक्टर करेंगे, मतलब a और c को, मतलब ac जो आया प्रोडक्ट कितना? 12 को अब हम ऐसा ब्रेक करेंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, बट प्लस करने पे b की वैल्यू कितनी है? 7. प्लस करने पे 7 आए. समझ में आ गया? क्या करते हैं, जब a और c का प्रोडक्ट आ जाता है तो उसके प्रोडक्ट को हम ऐसा ब्रेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो यही आए, लेकिन प्लस करने पे, जैसे यहाँ पे c के सामने साइन प्लस है तो प्लस करने पे, और अगर c के सामने साइन मतलब कांस्टेंट के सामने साइन अगर माइनस होता तो माइनस करने पे क्या आ जाए? b की वैल्यू मतलब कि 7 आ जाए. सो द ब्रेकिंग ऑफ 12 इज 3 4s are 12. 3 4s are 12 and 3 plus 4 is what? 7. So here we write 12 is equals to 3 into 4 and 3 plus 4 is equals to what? 7. Okay, now take p of x. P of x is equals to 12x square minus, in the place of 7 we have to write 3 plus 4. This is called splitting the middle term.
हमने क्या किया, मिडिल टर्म यही आपका 7x था, तो हमने उसमें जो कांस्टेंट 7 था हमने उस 7 को स्प्लिट कर दिया, 3 + 4 लिख दिया। ओके, ये नहीं कि आप कुछ भी स्प्लिट कर दीजिए, जो स्प्लिट करने का ये प्रोसीजर है कि पहले ए सी को मल्टीप्लाई किया फिर उस अकॉर्डिंग देखा, ये ही प्रोसीजर फॉलो करना है। आप अपने मन से कुछ भी स्प्लिट नहीं करेंगे। ओके, so this is in the place of 7 you have to write 3 + 4 into x + 1. Now this is 12x square minus 3 multiplied by x, this minus plus minus 4 multiplied by x. One more thing I want to tell you, mistake of sign is very common in this questions. साइन की मिस्टेक इस क्वेश्चंस में बहुत होती है, तो मैं आपसे इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि आप साइन पे कंसंट्रेट रहें। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते टाइम पे बहुत से बच्चे माइनस प्लस माइनस नहीं करते बल्कि प्लस ही रहने दिए, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ओके, सो दिस इज -3x -4x एंड +1. नाउ हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, 1 2 3 4. You have to take the common in first 2 part and last 2 part. आपको फर्स्ट 2 पार्ट और लास्ट 2 पार्ट में क्या करना है, कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 पार्ट में इन 12 and 3 you can common 3 and in x square and x you can common x. Okay, from 12 when you common 3, कॉमन लेने का मतलब सब्ट्रैक्ट करना नहीं है, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। इन 12 व्हेन यू डिवाइड बाय 3 रिमेनिंग इज 4 एंड इन x स्क्वायर इफ यू डिवाइड बाय x देन रिमेनिंग इज x माइनस you taken common 3x and this is also 3x, so whole thing is common, only 1 is here. Now in -4x + 1 nothing is common, so first of all you have to common 1 and मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ मैथमेटिक्स में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, so you have to common 1 here. 1 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 4x, क्योंकि माइनस आपने कॉमन लिया है दैट्स वाई दिस प्लस विल बिकम -1. ओके, 4x - 1 इज इन अगेन कॉमन बिकॉज in both term it is existed, that's why you have to take common 4x - 1. Now 3x from here and -1 from here is remaining, so your factor is 4x - 1 into 3x - 1 of the given polynomial p of x. One more problem I am going to tell you, just for you make sure yourself that concept of this question is clear to you. Okay, now look for the fourth part में यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 3x स्क्वायर -x -4. किससे कंपेयर करेंगे हम इसको, ax स्क्वायर + bx + c, बट हम साइन पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे। x स्क्वायर के साथ 3 है, x स्क्वायर के साथ a रहता है, a की वैल्यू 3, b यहाँ पे x के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो b की वैल्यू 1 और कांस्टेंट में 4 है तो c की वैल्यू 4। देखिए हमने साइन पे कंसंट्रेट नहीं किया। ठीक है, अब हमारा प्रोसीजर क्या है, a को हम c से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा कितना हो गया 12, और अब हमें 12 को ऐसा ब्रेक करना है। देखिए कांस्टेंट के सामने जो c की वैल्यू 4 है उसके सामने साइन कौन सा है, माइनस, तो अब हमें 12 को ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आए लेकिन माइनस करने पे b की वैल्यू मतलब कि 1 आ जाए। तो 12 का ब्रेक होगा 4 × 3, 4 3 जा कितना होता है 12, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। नाउ अब आप इसको p ऑफ x को कंसीडर करिए, देयरफॉर p ऑफ x = 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे x के साथ जो 1 होगा वही हो गया, उस 1 की प्लेस पे हमने कितना रख दिया 4 - 3 × x - 4, ये हमने स्प्लिट कर दिया। इसी चीज़ के लिए हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहते हैं। 3x स्क्वायर -4 × x 4x माइनस प्लस 3x, नाउ इट इज़ माइनस। मैंने आपको फिर बता रहा हूँ माइनस प्लस की साइन का बहुत ही ध्यान रखना है आपको।
माइनस प्लस के साइन की मिस्टेक ना हो, ठीक है। नाउ दिस इज फर्स्ट टू एंड लास्ट टू में से हम कॉमन लेंगे। 3x² माइनस 4x, 3 और 4 में तो कुछ कॉमन होगा नहीं, x² और x में x कॉमन हो जाएगा। तो जब हमने x कॉमन किया 3x² में से x कॉमन किया x माइनस 4x में से x कॉमन कर लिया तो बच गया 4 प्लस 3x माइनस 4 में से कुछ कॉमन नहीं होगा, नथिंग कॉमन, तो यहाँ से 1 कॉमन हो जाएगा। 3x माइनस 4 एज इट इज़ हो गया। 3x माइनस 4 को हम अगेन कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से आपका बचेगा x और ये प्लस 1। सो दिस इज द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। वी लर्न हियर हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सो I think it is clear to you, and now you have to wait for the next video where we will discuss how to factorize the cubic polynomials. This is the factorization of quadratic polynomials, where there we will discuss how to factorize the cubic polynomials, and that video will be very important video.